تو ناظرین، زندگی کا سب سے بہترین معلوم تجربہ ہے جو باتیں انسان کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، وہ جو کٹھن مراحل ہوتے ہیں، جو مشکل وقت ہوتا ہے اور جو ٹھوکریں کھا کر سیکھتا ہے نا، تجربہ ایسا گوہر ہے جسے نہ ادھار لیا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ آپ وہ کسی سے پرچیز نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اسے کسی کے اندر منتقل کر سکتے ہیں، بلکہ اسے خود ہی حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس میں وقت لگتا ہے، تھوڑی محنت لگتی ہے، اور اگر یوں کہہ دیجئے کہ تھوڑی ٹھوکریں لگتی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ بالکل، یہ ٹھوکریں ہی آپ کو سنوارتی ہیں، آپ کو کامیاب کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں، اچھا میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، مجھے بھی کتابوں کا بہت شوق ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ کتب بینی تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ علمی محفلوں میں جاتے ہیں، سیمینارز اور لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ فیلڈ میں نہیں اترتے، تجربات نہیں کرتے، اس علم کو عملی شکل نہیں پہناتے، تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل، آپ نے کتنی بہترین بات کی ہے، اور یہ صرف کتب بینی کی حد تک نہیں ہے۔ ایک اور اگزامپل اگر ہم دے دیں، فار ایگزامپل تیراکی کا ماہر آپ کو بہترین ٹپس تو دے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ پانی میں خود اتر کر ہاتھ پیر نہیں چلاتے آپ تیرنا نہیں سیکھ سکتے۔ ظاہر ہے شروع میں آپ کو مشکل تو ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بالآخر آپ سیکھ ہی جائیں گے، کیونکہ تیراکی بھی وہی عمل ہے نا جو جب دیکھ کر آپ کو نہیں آتا۔ بالکل، تو شیریں تجربہ جو ہے وہ استاد ہے جو پہلے امتحان لیتا ہے، آپ کو گراتا ہے، آپ کو تھکاتا ہے، اور بعد میں وہ سبق بھی سکھاتا ہے، اور اسی سبق سے آپ کامیاب ہیں۔ بریلینٹ، بہت اچھی اگزامپل دی کیتھرین آپ نے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے بزرگوں اور ان لوگوں کی عزت کریں جو ان تجربات سے گزر چکے ہیں، ان کی باتوں کو سنا کریں۔ ان کے سفید بالوں میں اکثر ایسی کہانیاں، نشانات اور اسباق ہوتے ہیں جو تجربے نے خود لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، ان کے پاس تجربات ہے، اس سے سیکھیں، اس سے استفادہ کریں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل کریں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے، کہا ہے کہ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا یا کسی بھی طرح یہ معاملہ ختم کر دیں گے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اور جواب کا انتظار کریں گے، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا۔ تہران ڈیل کرے یا انتہائی برے نتائج کے لیے تیار رہے۔ پروگرام میں آگے چل کر یہ بھی بات کریں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جو سنجیدہ کوشش ہیں وہ جاری ہے۔ پاکستان سے ایک اہم ترین شخصیت کی تہران واگی متوقع ہے۔ عرب میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے، کہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور حج کے بعد اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ دیکھیں گے آگے چل کے پروگرام میں کہ یہ معاملات کس جانب پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وینزویلا اور ایران کے بعد اب کیوبا کی باری ہے۔ کیوبا کے سابق صدر راؤل کاسٹرو پر امریکہ میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ان پر 1996 میں امریکی شہریوں کے قتل کی سازش کا الزام تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جی ایز یوجول کہ عوام تیار رہیں، کیونکہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصول کرنے میں بہتری لانے پر کافی زور دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی معاشی اصلاحات جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ معاملات آگے فائنینشلی کس جانب بڑھیں گے، پروگرام میں یہ بھی دیکھیں گے۔ تو آپ کو موسم کے حوالے سے بھی بتائیں کہ شدید گرمی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ابر رحمت جم کر برسا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اس پر بھی تفصیلاً اسی بارے میں اسی پروگرام میں آپ سے بات کریں گے۔ بالکل، لیکن ایز یوجول سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ٹاپ سٹوریز ہے اس سے شروعات کر لیتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں بصارت سے محروم پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے ایک بار پھر دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ کہا کہ بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرتا ہے، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک بار پھر بے نقاب کیا ہے انہوں نے۔ بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ سائمہ سلیم نے عالمی برادری پر یہ بھی واضح کر دیا ناظرین کہ پاکستان تنازعات کے پرامن حل اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ انہوں نے نا گفتگو کی، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ یہ جو گفتگو ہے وہ سائمہ سلیم کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں بصارت سے محروم پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے ایک بار پھر دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرتا ہے اور بھارت پانی کو بطور ہتھیار جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ بتائیں آپ کو کہ آئی ایم ایف کا پیٹ ہے ناظرین کے بھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔
आलमी मालियाती फंड ने टैक्स का जाल फैलाने और टैक्स वसूल करने में बेहतरी लाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। बिल्कुल, मुआशी इस्लाहात जारी रखने की भी हिदायत कर दी गई है। नए बजट की तैयारी के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया है। IMF मिशन चीफ एवा पेट्रो ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने पर बयान जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ तामीरी बातचीत हुई है। पाकिस्तानी हुकाम ने माली साल 2027 में GDP के 2% बुनियादी बजट सरप्लस के हदफ पर कायम रहने की अज़्म का अयादा किया है, जिससे माली इस्तेहकाम को सहारा मिलेगा और मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकेगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने यकीन दिलाया है कि महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। तवानाई की कीमतों में इजाफे के मुमकिन असरात पर भी करीबी नज़र रखी जाएगी। ये भी कहा गया है नया बजट मुमकिन तौर पर कैसा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा या तकलीफ मजीद बढ़ेगी। इसी पर बात कर लेते हैं। श्री हमारे साथ शकील मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा शकील। देखिए, नया बजट जो आप कह रही हैं वो काफी मुश्किल होगा आवाम के लिए, क्योंकि 18,035 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जिसमें 15,264 अरब FBR का टैक्स हदफ और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,768 अरब होगा, जिसमें 1,727 अरब पेट्रोलियम लेवी की मामले आवाम से वसूल किए जाएंगे और सूबे 430 अरब के अलग टैक्सेस लगाएंगे। जो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हुए हैं 13 से 20 मई तक इस्लामाबाद में, और उसके हवाले से जो बयान जारी किया गया है उसमें IMF ने कहा है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए और टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाए, क्योंकि जो अखराजात हैं हुकूमत पाकिस्तान वो कंट्रोल करे और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर मुतबादल शोबों पर ये पैसे खर्च किए जाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी भी बरकरार रखेगा और पाकिस्तान ने 2027 में GDP का 2% बुनियादी सरप्लस हदफ बरकरार रखने का इरादा भी किया है। तवानाई कीमतों में इजाफे के साथ पर कड़ी नजर रखी जाएगी और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो आवाम को पास ऑन की जाएंगी। साथ ये भी कहा गया है कि रुपए की जो कदर है वो फ्लेक्सिबल रखी जाएगी और तवानाई शोबा, सरकारी इदारों, मालियाती इस्लाहात और पेशरफ का जायजा भी लिया गया। मुज़ाकरात में IMF कमीशन फिर पाकिस्तान आएगा, लेकिन वो 2026 का जो आखिरी शशमाही है उसमें आएगा दौरा और उसमें पाकिस्तान और IMF जो है अगले शशमाही जो इक़्तिसादी जायजा उस पर गौर करेंगे। लेकिन बजट के हवाले से मुज़ाकरात अभी वर्चुअल तरीके से जारी रहेंगे, क्योंकि अभी एजेंडा मुकम्मल नहीं हुआ। IMF मिशन वापस जरूर गया है, कुछ लोग उनके यहाँ पे मौजूद हैं और आने वाले दिनों में मजीद मुज़ाकरात होंगे और बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी, क्योंकि ईद के फौरी बाद जून के फर्स्ट वीक में बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश होना है और अभी उसके लिए तैयारियां जारी हैं। IMF और हुकूमत पाकिस्तान ऑन बोर्ड रहेंगे, मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। जी दुरुस्त बात है। और शकील, मतलब आपकी बात से तो अंदाज़ा हो रहा है कि यूं कह दीजिए कि अवाम न कमर कस लें अब अपनी। शकील, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि 20 से ज़्यादा सरकारी इदारों पर तो जो बादियों नज़र में मामला दिख रहे हैं, बराए फरोख के बैनर्स भी लगने की बातें हो रही हैं। हुकूमत कौन कौन से इदारों का सौदा करने वाली है शकील? देखिए, तकरीबन 27 ऐसे इदारे हैं जो कि निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। PIA की निजकारी हो चुकी है, फर्स्ट वेवमेंट बैंक की हो चुकी है और अब जो पावर सेक्टर के जो इदारे हैं यानी डिस्कोज, जिनको बिजली की तकसीम कार कंपनियां कहते हैं, उनकी निजकारी होनी है। फर्स्ट फेज में लाहौर है, गेपको है, फैसलाबाद है, इन कंपनियों की निजकारी होगी। तो इस्लामाबाद और बाकी जो कंपनियां उनकी भी बारी आएगी। तो निजकारी प्रोग्राम भी मुकम्मल करने पर उस पर पेशरफ का जो है IMF को यकीन दिलाया गया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उम्मीद ये है कि नेक्स्ट जो साल होगा 2027 उसके अवाइल में बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बोझ है सरकारी इदारे पर। ये इदारे जो हैं लीकेजेस बहुत ज्यादा हैं, बिजली चोरी हो रही है और इसके अलावा लाइन लॉसेज हैं और गर्दशी कर्जे का बहुत बड़ा इशू है। तो IMF कह रहा है कि इन तमाम जो इशूज हैं, जो मामला हैं, इन पर काबू पाया जाए और निजकारी के जरिए हुकूमत अपना जो फुट प्रिंट है सरकारी इदारों में, SOEs में, वो कम करे और निजी शोबे को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि इन इदारों की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो और जो नुकसानात हो रहे हैं कौमी खजाने को उन पर भी काबू पाया जाए। तो अब हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि निजकारी के अमल को आगे लेकर जाएंगे। एक अच्छी कामयाबी ये मिल गई है कि PIA की निजकारी हो गई है और फर्स्ट वेवमेंट बैंक की भी हो गई है और अब उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इस पर मजीद पेशरफ होगी। लेकिन इससे पहले भी देखा है कि काफी बार कोशिश की गई है, लेकिन निजकारी का प्रोग्राम हमेशा सुस्त रवि का शिकार ही रहा है और अगले माली साल भी अब यकीन दहानी कराई गई है कि कुछ इदारों की निजकारी होगी, खास तौर पर पावर सेक्टर में और दीगर शोबों में। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि यकीन दहानी कराई गई है कि अगले साल भी कुछ इदारों की निजकारी होगी और जिसमें ज़्यादातर जो जोर है वो पावर सेक्टर पर दिया जा रहा है। लेट्स सी कि अब ये निजकारी का अमल आगे किस तरीके से बढ़ता है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद की रहमत साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ा तफसील से उन्होंने क्या इम्पैक्ट हो सकता है बजट से पहले का, उसके बाद का, IMF के विजिट्स का। तो शदीद गर्मी के बाद लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में बादल बरस पड़े हैं। ओकाड़ा, जहलम, गुजरात और मियांवाली में अब्र रहमत जमकर बरसा है। बरसती बूंदों
बूंदों ने मौसम खुशगवार कर दिया है। कई मकामात पर बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हुई है, जबकि पेशावर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश के बाइस गर्मी का जोर टूट गया है। और लाहौर में इस वक्त मौसम कैसा है? सुबह वैसे कैथरीन आप और मैं जब आ रहे थे तब तक तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी बारिश इस वक्त कैसा है? अंस जफर से जान लेते हैं। अंस, कैसा मौसम है फिर लाहौर का? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि लाहौर शहर में गुज़िश्ता रात से ही तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। रात भर शहर में 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक हवाएं चलती रही हैं और उसके बाद सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ देर के लिए बारिश भी हुई है। बारिश के बाद शहर का मौसम मज़ीद सुहाना हो गया और गर्मी का ज़ोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ में लाहौर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने में आई थी और टेम्परेचर दिन के औकात में 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, मगर बारिश के बाद अब शहर का मौसम सुहाना हो चुका है और शहर के मौसम में एक खुशगवार राहत का एहसास है। और महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया था। लाहौर में 19 मई से लेकर 23 मई तक दिन के औकात में और रात के औकात में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जी नाज़रीन, तो सवाल भी मेरा, जवाब भी मेरी मर्जी का। एक मिनट, ये आप नहीं कह सकती, ये बयान आपका नहीं हो सकता। आपने सही पहचाना, ये बयान है जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, यानी कि बेसिकली उनके अंदाज़े बयान का, क्योंकि अमेरिकी सदर ने फिर ईरान को समझे कि तड़ी लगा दी है। कहा कि ईरान को मुआहदा करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान डील कर लेता है तो ये सब के लिए अच्छा है, वरना वो जानते हैं कि क्या होना है। तेहरान पर बहुत शदीद हमला भी कर सकते हैं। मजीद कुछ दिन ईरान के जवाब का हम इंतजार करेंगे। हमें दुरुस्त जवाब दरकार है, ये उन्होंने कहा है। जो मैं बात कर रही थी ना कि जवाब भी मेरी मर्जी का, मुझे लगा तो सदर ट्रंप ने कहा किसी भी तरह अब ये मामला खत्म करेंगे। बोले ईरान में समझदार लोगों से राब्ते में है और उन्होंने ये भी वाज़ह कर दिया कि जब तक मुआहदा नहीं हो जाता ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, हम उन्हें एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। एग्जैक्टली उनका कहना क्या था, आपको सुनवाते हैं। Go very quickly, or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. We're dealing with some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. But I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. अब आपको ये भी बता देते हैं, कतर और पाकिस्तान के सालसे में नया मुसवदा तैयार कर लिया गया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान से मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इस्राएली वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की मुखालफत, दोबारा हमले की ख्वाहिश की गई है सदर ट्रंप के इस्राएली जो हैं सदर उनकी जानिब से, और सदर ट्रंप अब भी मुआहदे के इम्कान पर जोर दे रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ये आपको बता रहे हैं, सालिस ममालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। ट्रंप की नेतन्याहू से गुफ्तगू हुई। मुसवदे पर दस्तखत के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। सदर ट्रंप मुज़ाकरात में जोहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ शामिल होंगे। और ये सारी जो बयानात हैं, ये जो चीज़ें हमने आपको सदर ट्रंप ने कहा है जो रिपोर्ट हैं। किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रही हैं। और जी हम थोड़ा सा ये भी आपको बता देते हैं क्विकली कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजवज़ा मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अरब मीडिया ने भी दावा किया है कि मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा सिफारती कोशिशें जारी हैं। एक पाकिस्तान की अहम शख्सियत की आज ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हज के बाद ये मुआहदे के हतमी जो निकात हैं उस पर मुज़ाकरात के नए दौर का इनेकाद इस्लामाबाद में मुतवक्के है, जहाँ मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। और पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर सालिसी की कोशिशें जारी है। अरब मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में ही मौजूद है। उनका एक हफ्ते में ये दूसरा दौरा है। कितना इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल आप देखें पाकिस्तान इस वक्त निभा रहा है। अहम पैगाम लेकर वो तेहरान पहुंचे हैं और मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से
अहम मुलाकात भी हुई है। कुछ विजुअल्स भी साइड बाय साइड आप देख रहे हैं, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं इस मुलाकात के। तो पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी खित्ते की सूरत-हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैथरीन उनका ये दौरा भी है और ये मुलाकातों का सिलसिला और वही भी बात है। चीनी कि पाकिस्तान बहुत अच्छे से अपना रोल जो है वो अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से भी ये दूसरी मुलाकात है। मुलाकात का सिलसिला थम नहीं रहा, जारी है, क्योंकि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरानी तजावीज़ का जवाब भेज दिया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला 14 निकाती तजावीज़ की बुनियाद पर जारी है। और ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात जारी रखे हुए है, मगर अमेरिका पर शुकूक बरकरार है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला फ़रीक़ैन के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने साहिली ममालिक के साथ महफूज बहरी ट्रैफिक के लिए प्रोटोकॉल बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अब देखिए ना, एक मैकेनिज्म बनता हुआ नजर आ रहा है हमें कुछ हद तक, जो शायद इतने अरसे में कहीं ना कहीं डाइल्यूटेड था। तो अपना हुर्मस में पायदार सिक्योरिटी के लिए ओमान और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ निज़ाम बनाने की तजवीज़ भी सामने आ रही है, क्योंकि ईरान तो इस बात पे कायम है कि जी हम एक मैकेनिज्म के थ्रू अब अपना हुर्मस को जो है वो ऑपरेशनल करेंगे। लेकिन ईरान ने अपना हुर्मस से मुतालिक नई अथॉरिटी कायम कर दी है, यानी कि जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उस पर कितना एक रैपिड डेवलपमेंट सामने आ रही है। इदारे का नाम जी पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी रखा गया है। इन्होंने नाम भी रख दिया है, अरब मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है। और हम बाकायदा जो अरब मीडिया की जानिब से थ्रू सोशल मीडिया जो ट्वीट के जरिए, एक्स के जरिए जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताई गई है, वो भी आप तक स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने हुर्मस से गुजरने के लिए अब इजाज़तनामा लाजमी करार दिया गया। ईरानी अथॉरिटी ने कंट्रोल जोन्स की तफसीलात भी जारी कर दी हैं, और जिसमें जजीरा खुश्म से यूएई रियासत उम्मे अल क़य्यूम तक का जो कंट्रोल जोन मुकर्रर किया गया है। ये आप एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, आपसे कुछ देर पहले भी विंडोज़ में आ रहा था जो एक मैप है, बाकायदा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं साइड विंडो पे, कि ये वो स्पेसिफिक एरिया है जिसका कंट्रोल जोन इन्होंने जो है वो बताया है, स्पेसिफिक किया है। ईरान के जबल मुबारक से लेकर फुजैरा के जनूबी हिस्से तक का इलाका भी इसमें शामिल होगा, इस मैप में हम देख सकते हैं। और जहाज़ों के लिए ईरानी लाइसेंस और जो कोऑर्डिनेशन है वो लाजमी होगा। जैसे कि ईरानी अथॉरिटी, ये जो कमेटी बनाई गई है, ये जो ईरानी अथॉरिटी बनाई गई है, इसमें ये बात सामने आई है कि ये वो मैकेनिज्म है जो इतने अरसे से ईरान कोशिश कर रहा था कि वो सामने। बिल्कुल। एक और खबर अपने नाजरीन को दे देते हैं। शरीक ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान के साथ इसराइली सिक्योरिटी वजीर बेन गोयर की बदसलूकी सामने आई है। दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल देखा गया है। कई ममालिक में इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। तुर्की ने कार्रवाई को बहरी कज़ाकी करार देकर शदीद मजम्मत की है। स्पेन, फ्रांस, इटली और कनाडा ने इसराइली सफीरों को तलब करके शदीद एहतजाज किया है। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। तालिबी वज़ीर आज़म ने इसराइल से बदसलूकी पर मुआफ़ी मांगने पर जोर भी दिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइली वज़ीर का इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मजम्मत करते हुए सहूनी रियासत से वजाहत मांग ली है। तो वही ना, मतलब जब आप कुछ गलत करते हैं तो वजाहत तो देनी पड़ती है, बदसलूकी का जवाब देना पड़ता है। तो अमेरिका ने क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो पर कत्ल के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद कर दी है। राउल कास्त्रो पर 1996 में अमेरिकी शहरियों के कत्ल की साजिश और दीगर संगीन जुर्म के इल्ज़ाम हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्यूबन सदर ने राउल कास्त्रो पर अमेरिकी इल्ज़ाम को बेबुनियाद और सियासी चाल करार देते हुए कहा है कि अमेरिका केस को मुमकिन फौजी कार्रवाई का जवाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ज़ाहिर इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। जब ये बयान उनकी जानिब से राउल कास्त्रो की जानिब से, अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्होंने बेसिकली ये कहा कि क्यूबन सदर पर फर्द जुर्म आयद होना एक बहुत बड़ी बात है। क्यूबा एक नाकाम रियासत है, हमें क्यूबा के अवाम की मदद करना होगी और हम क्यूबा को आज़ादी दिलवा रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। लेट्स आगे चलकर देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसमें फर्दर क्या चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स क्या इस मामले पर सामने आ सकती है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के दौरे पाकिस्तान का
कौन सा ये तारीखी ये बहुत वाकई आपसे कह रही हैं हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर द एंटायर स्माइली मुस्लिम कम्युनिटी हियर इन पाकिस्तान। और प्रिंस रहीम का सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। विजुअल्स आप लोगों को दिखाते हैं। साथ साथ ऐवान सदर आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर मुमलिकत ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया और वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर अहम शख्सियात भी देखी जा सकती हैं कि इस इशाइये में मौजूद थी, शिरकत फरमा थी। सदर ने सेहत, तालीम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जो खिदमात है, जो अखान डेवलपमेंट नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर है, उसे सराहा गया और तरक्की के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी अयादा किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान अपने पहले दौरे के दौरान ज़्यादा वक्त शुमाली इलाका जात में गुजारेंगे। स्माइली कौंसिल की जानिब से जो जारी शेड्यूल है उसके मुताबिक प्रिंस रहीम की 21 से 25 मई तक गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में क़याम के दौरान मुलाकातें भी होंगी। तो एक बहुत ही हिस्टोरिक विजिट है यकीनी तौर पर इनका। एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं इस घंटे की, और वो ये है कि सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद या बैरून मुल्क सेटल होने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत आसान हो गया है। वजारत दाखिला ने पहली बार मुल्क भर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का निज़ाम यकसा करने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छा फैसला। ये चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का डाटा यकजा कर दिया गया है। यानी कि अब एक ही प्लेटफॉर्म से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो जारी होगा। अब शहरी ऑनलाइन पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था लोगों को इस हवाले से। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में मजीद देख लेते हैं कि क्या है। ये डिजिटल अपडेट पूरे मुल्क में पुलिस वेरिफिकेशन हासिल करने वालों के लिए एक बड़ी तब्दीली है। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के लोग एक ही जगह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। देर आए दुरुस्त है। मैं समझता हूँ ये इनिशिएटिव बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब ये कि पहले ट्रेडिशनली तरीकाकार यही होता था कि मुख्तलिफ महकमों में जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। तो यहाँ पे अच्छा है कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाएगा। मेरे 2 एड्रेस है, तो अब मुझे इस्लामाबाद के लिए अलग जाना होता था। अगर मेरा सूबा चेंज होता था तो उसके लिए मुझे अलग जाना होता था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कर दी है कि ऑनलाइन आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपका एक ही सर्टिफिकेट ऑल ओवर पाकिस्तान चलता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए पहले थाने जाना पड़ता था, स्टाम्प कराओ, फोटो कापियाँ कराओ, फिर मुतलका थाने जाओ, वहाँ से अखबारियाँ काटो, कभी साहब मौजूद हैं कभी नहीं हैं। तो उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट ने किया ये तो बहुत ज़बरदस्त है। टीपीके का वैसे करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसके लिए अवाम ने वीज़े लेना भी छोड़ दिए थे, लेकिन अभी जो है यूनिफॉर्म पॉलिसी आ गई है, ऑनलाइन हो गया, बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस हो गया। नेशनल पुलिस ब्यूरो जो है उस ऑफिस में इन्होंने करैक्टर सर्टिफिकेट जो वर्क परमिट वगैरह के लिए चाहिए होता है या किसी भी और सूरत में, तो अब वो इंशाल्लाह काफ़ी आसान हो गया है और अब मुश्किलात काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया इन्होंने। वजारत दाखिला के इस इकदाम से इमिग्रेशन हासिल करने वाले, बैरून मुल्क नौकरी करने वाले और पाकिस्तान में 15 ऐसी सर्विसेज जहां पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दरकार होता है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो ऑनलाइन फराहम करेगी। एक और अहम इशू, हमारे माशरे में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा समाजी बहबूद की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इंतहाई अहम कदम उठा लिया गया है। दारुल अमान और ख़वातीन मराकज़ के लिए पहली बार बाकायदा SOPs जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और इस SOPs को आपको बताते हैं रिपोर्ट में जो कि तैयार की है इरफान मूसा ज़ई ने। ख़वातीन को महफूज, बावकार और मरबूत सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए नए SOPs मुतारिफ़ कराए गए हैं। नए SOPs के तहत दारुल अमान और ख़वातीन बहरान मराकज़ में तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन और लड़कियों को महफूज रिहाइश, कानूनी मुआवनत, नफ्सियाती मदद और बहाली की खिदमात एक मरबूत निज़ाम के तहत फराहम की जाएगी। हमारे दारुल अमान के जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी पता होगा कि हमने क्या करना है किस टाइम पे, और हमारे जो इनमेट्स यहाँ पे हैं उनको भी अपने राइट्स का पता चल जाएगा। तो इससे हमारी सर्विस डिलीवरी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और एक बेटर सर्विस डिलीवरी हम दे पाएंगे। तकरीब में शरीक निजी तंजीमों और बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों ने भी इस इक़दाम को खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए एक अहम संग मिल करार दिया। उसके साथ हमने किस तरह डील करना है, उसको हम एडमिशन दे देंगे, वो कर लेंगे। मतलब अभी फुली तौर पे हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है एज़ पर नीड इस SOPs को हम रिवाइज कर सकें। नए SOPs के ज़रिए मुतासरा ख़वातीन को बरवक्त और मौसर सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। कैमरामैन असद अली के साथ इरफान मूसा ज़ई, समा, पेशावर।
बहुत अच्छा इक़दाम, यानी कि सिर्फ ये सहूलत नहीं दी जा रही कि उन्हें एक छत फराम की जाए, बल्कि उन्हें जो एक लीगली गाइड करना, कानूनी जो मुआवनत होती है, बाकायदा जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होती है, वो तक जो है वो फराम की जाएगी। तो हम ये समझते हैं एक अच्छा इनिशिएटिव है और बिल्कुल इससे कामयाब भी होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। अब आगे बढ़कर कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। हाई ब्लड प्रेशर जैसे ख़तरनाक और कहते हैं ना खामोश मर्ज, इसे खामोश मर्ज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर पनप रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि जी ये हो क्या रहा है आपकी बॉडी के साथ। अब इससे बचाव के लिए कोयटा में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। माहिरीन का कहना है कि बर वक्त अगर तशख़ीस हो जाए तो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और इससे ये होता है कि जो मुहलिक बीमारी है उससे अब बहुत बड़ी हद तक बचा जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, इस पर रिपोर्ट देख लेते हैं मुजीबुल्लाह की। कोयटा में हाई ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में शहरियों ने अपने ब्लड प्रेशर और दीगर तिबी मुआयने करवाए। कैंप में माहिर डॉक्टर्स और तबी अमले ने मरीजों को मुफ्त मशवरे और अद्वियात भी फराहम की। माहिर अमराज कल्ब प्रोफेसर डॉक्टर जलालुद्दीन अचकज़ई कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश बीमारी है जो दिल, गुर्दों और दिमाग को शदीद मुतासिर कर सकती है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल, गैर सेहत बख्श खुराक, तंबाकू नोशी, मुसलसल जहनी दबाव और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी इस मर्ज की बड़ी वजूहात है। जितना जल्दी इसकी तशख़ीस हो उतनी जल्दी इस पर काबू पाया जा सकता है और ये दिल की बीमारियों, फालिज के वजूहात में एक सबसे बड़ी रिवर्सिबल, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ मरीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें मरीज़, डॉक्टर, मरीज़ के फैमिली मेम्बर्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ये सारे मिला के हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हर साल का थीम होता है और 2026 का थीम है कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर टुगेदर। कैंप में आने वाले मरीजों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि मुफ्त तिब्बी सहूलत और आगाही मुहिम से अवाम को अपनी सेहत के बारे में बेहतर शऊर मिल रहा है। पिछला महीने में आया था, इन्होंने मेरा ऑपरेशन फ्री में कराया। अभी मेडिसिन के लिए आया हूँ, उन्होंने मुझे एक पर्ची लिख कर दिया और जो मेडिसिन था यहाँ से वो मुझे फ्री दिया। मैं बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ और मेहरबानी, अल्लाह इनको खैर का तौफीक दे। कैंप तो लाजमी लगने चाहिए, हर किस्म के लगने चाहिए, सिर्फ ये हार्ट का नहीं, शुगर वाले बहुत होते हैं और कई किस्म के बीमारी वाले होते हैं, इससे हम मुतमईन हैं। माहिरीन के मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा, रोज़ाना वर्जिश और बाकायदगी से ब्लड प्रेशर चेक करवाने की आदत अपनाई जाए तो इस खामोश मर्ज के खतरनाक असरात से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी दंगल सजने को तैयार है। सियासी जमातें जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अवाम किसे वोट देना पसंद करेंगे, जान लेते हैं स्कर्दू में मौजूद नुमाइंदा समा आरिफ से। आरिफ, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ स्कर्दू मरकजी बाजार में। सियासी पार्टियां तो लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रही हैं, लेकिन आया अवाम की जो बात है उनसे भी हम बात करते हैं कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो किस नुमाइंदे को वोट देंगे या वो कौन सा अवामी मसाइल है जिनका हल कोई नुमाइंदा करता है तो उसकी तरफ वो राग़िब होंगे। यही बात करने के लिए हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। स्कर्दू का सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग है। इस वक्त स्कर्दू में 23 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग है। हम इस इलेक्शन में उस पार्टी को, उस शख्स को वोट देंगे जो स्कर्दू को बदतरीन लोड शेडिंग से निकाले, जो स्कर्दू में आवाम को पीने की पानी दे, जो हमें सेहत और तालीमी बुनियादी सहूलियात दे। जी, कुछ मसाइल तो इन्होंने गिनवाए और इसी की तरह अभी एक और शहरी भी हमारे यहाँ मौजूद है। आप ये बताइएगा कि इलेक्शन में आपका वोट किसके लिए है? बिजली का मसला है, रोड का मसला है, ये जिसने इस मसले को हल कर लेंगे हम उसी को ही वोट देंगे। लोगों का ये कहना है कि जो बिजली के बिलखुसूस इन्होंने सर फहरिस्त के मसला रखा और इसके अलावा पानी और तालीम के मसाइल, यानी कि बुनियादी अवामी मसाइल जो हल करेगा ये उन्हीं को ही वोट करेंगे। तो ये स्कर्दू के अवाम का मुतालबा है। अब देखते हैं कि उन मुतालबात के हल के लिए ये किसे चुनते हैं। जी, और जी, लाहौर की बकरे मंडी में अगर बात करें तो लाहौर में बकरे भी बैल की कीमत में फ़रोख्त हो रहे हैं। 5 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत मांगी जा रही है। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त शाहपुर कांचरा, बड़ी अहम मवेशी मंडी है, बहुत बड़ी मवेशी मंडी है और यहाँ से आप तायुन लगा सकते हैं कि दीगर मंडियों का क्या वहाँ पर रेट्स वगैरह तय किए होंगे। तो दानियाल, आपसे बात कर लेते हैं, बताइएगा
इतने महंगे बकरे क्या किसी खास नस्ल के हैं? देखिए, ईद कुर्बान तो करीब आ रही है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत अच्छा जानवर जो है वो ख़रीदें, मगर ऐसा लग रहा है कि आप लाहौर की मुख्तलिफ मंडियों में सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बकरों के सेक्शन के अंदर, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के अंदर, जहाँ पे सूरत हाल ये है कि बैल जिस कीमत के अंदर आपको मिलते थे उस कीमत में अब आपको बकरे मिल रहे हैं। व्यापारियों से जानते हैं कि वो कितने पैसे जो है वो इनके डिमांड करें। सारे का 5 लाख। 5 लाख रुपए में तो बैल आ जाता है यार, आप बकरे का 5 लाख मांग रहे हैं। बकरा इसका गोश्त महंगा होता है, ये इसके जो खर्चे हैं वो भी महंगे होते हैं, बड़े बड़े चीज़ें इनको देते हैं, दूध देते हैं, फ्रूट देते हैं। गाहक इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद दिनों में रेट कम हो जाएगा, मगर व्यापारियों का ये ख्याल है कि जितनी वो कीमत मांग रहे हैं उतने मुँह मांगे दाम जो है वो उनको देने वाले गाहक आइंदा चंद रोज़ में ज़रूर आएंगे। जी तो जब बात कर लेते हैं मुल्तान की। मुल्तान में ईद उल अज़हा करीब आते ही चारे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरा फरोशों ने 50% इजाफा कर दिया। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखते हैं इस पर। ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों का चारा भी महंगा हो गया। खल 4200, चोकर 2800 और घास 500 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। पिछले साल 2 जानवर 3 लेते थे, अब इस साल हमने 1 जानवर लिया। घास इतना महंगा है कि हम बकरे को कुछ क्या खिलाएं, आप बताएं हमें, कि इस साल घास की डबल कीमत कर दी है इन लोगों ने। बढ़ती महंगाई ने जानवरों की खुराक को भी मुतासिर किया है। दुकानदार कीमतें बढ़ने के नित नए बहाने कर रहे हैं। टोका मशीन है, पीटर पे चलती है और पेट्रोल जो है वो महंगा है, तो पीछे से गाह मिलते नहीं है, तो इसीलिए महंगा भेज रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवर की खिदमत करके खुशी महसूस होती है। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को खत्म करने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, सबा, मुल्तान। अच्छा जी, ये तो हो गई बकरों की बातें, मवेशी मंडी की बातें। अब आपको लिए चलते हैं हाफिजाबाद। ये शहर वैसे तो चावल और गंदम की पैदावार में तो अपनी मिसाल आप है ही, जाना जाता है इस हवाले से, लेकिन जी एक नई ज़री तहकीक से मुनफरिद तरबूज की काश्त में भी इजाफा हो रहा है। अब वो है क्या, हम बता दें या रिपोर्ट दिखा दें? हम रिपोर्ट दिखाएंगे आपको इम्तियाज ताज की। लाले सारी गड्डी लाले, सारी गड्डी लाले, लाले लाले सारी गड्डी लाले। लाल का जमाना हुआ पुराना, हाफिजाबाद के बागात सज गए हैं जर तरबूज से। नई ज़रई तहकीक से तैयार मुनफरिद बीज से हासिल करदा ये जर तरबूज लाल तरबूज के मुकाबले में मुनफरिद जायका, मिठास और रस से भरपूर है। हमने एक नया बीज जो है वो लगाया है और वो बहुत ज्यादा खुश जायका और बड़ा पसंद किया जा रहा है। चूंकि बीज बहुत ज्यादा महंगा है इसलिए हमने थोड़ी तादाद में लगाया था और इसकी डिमांड नहीं पूरी हो रही। गवर्नमेंट हमें अगर कोई तावन करे तो हम इसको ज्यादा तादाद में लगाएं और ये बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। जर्द रंग का तरबूज आ गया है, इसका जायका भी बहुत अच्छा है और ये महंगा बहुत है। छोटा सा तरबूज है, ये 500 रुपए का एक तरबूज है। मकामी मंडियों में जर तरबूज शहरियों की तवज्जो का मरकज है। कहते हैं ये सिर्फ अपनी रंगत में ही मुनफरिद नहीं, इसका जायका भी लाजवाब है। इम्तियाज ताज, समा, हाफिजाबाद। तो जनाब, रेलवे स्टेशन पर चहल पहल और प्यारों से मिलने वाले जो जुदा होने के मनाजर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जो ना सिर्फ रेलवे की तारीख का अमीन है बल्कि उसे अपने हुस्न, सुकून और खामोशी से भी मुनफरिद समझा जाता है। बिल्कुल, जल्दी से आपको दिखा देते हैं क्योंकि हम भी बेताब हुए हैं इसको। जैसे देखिए, अलीना शाहिद की रिपोर्ट में देखेंगे। रेल की लगातार सीटियां, नाकुलियों की सदाएं, मुसाफिरों का हुजूम, ना कोई हंगामा, हर तरफ हू का आलम। ये गोलरा रेलवे स्टेशन है जहां सदियों से शायद खिज़ां का बसेरा है। अंग्रेज दौर की याद दिलाती रेलवे स्टेशन की खूबसूरत इमारत 1881 में कायम हुई। तब यहाँ दूर दूर तक आबादी सिर्फ बराए नाम थी। वीराने में कायम ये रेलवे स्टेशन किसी दौर में मुसाफिरों के लिए डरावने ख्वाब से कम ना था। बुजुर्गों से सुना है कि जब ये रेलवे स्टेशन तामीर हो रहा था तो यहाँ पे आसपास कोई आबादी का नामो निशान नहीं था। ये सारी जगह वीरान हुआ करती थी और जो लोग यहाँ पे आने से डरते थे। और ये भी सुना है कि किसी को अगर बदवा देनी होती थी तो कहा जाता था कि
जा तेरी रात जो है वो गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर गुजरे। रेलवे जंक्शन होने के बायस यहाँ रेलों की आमदोरफ्त तो बहुत है, मगर इसकी निस्बत मुसाफिर कम हैं। दिन का अक्सर वक्त यहाँ सन्नाटे गूंजते हैं। 1881 में ये स्टेशन बना और 1912 में इस स्टेशन को जंक्शन के तौर पर अपग्रेड कर दिया गया था। स्टेशन एक नेचुरल ब्यूटी भी रखता है क्योंकि यहाँ पे बैनियन ट्रीज़ की एक लंबी कतार यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से एक स्टेशन एक नेचुरल ब्यूटी भी देता है और दूसरा स्टेशन ऑपरेशनल है, उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। दिन को इतना यहाँ पे बिजी स्टेशन नहीं होता, पुराना स्टेशन है, उसको देखने के लिए और म्यूज़ियम को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। शाम ढले यहाँ फिर खामोशी का राज होता है। हवा की सरगोशियों के साथ परिंदों की आवाज़ें माहौल को मजीद रोमानवी बना देती हैं। ऐसे में कोई दीवाना तन्हाई से बातें करने यहाँ चला आए तो खाली प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करती खामोशी इसका वालेहाना इस्तकबाल करती है। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो अर्बन लाइफस्टाइल से तंग आकर, मसरूफियात से तंग आकर उनसे दूरी इख्तियार करने के लिए मैं रेलवे स्टेशन, गोलड़ा रेलवे स्टेशन आता हूँ। इधर खामोशी है, तन्हाई है और आप सब्ज़ा है, यहाँ पे है। नेचर से कनेक्ट होकर आपका जो दिली सुकून है वो आप यकीनी हासिल कर सकते हैं। मंजर में सोना घोलती डूबते सूरज की किरणें भी शाम को स्टेशन की इमारत का अलविदाई बोसा लेकर रुखसत हो जाती हैं। बरसों की तारीख के गवाह बरगद और पीपल के बूढ़े पेड़ भी अहद रफ्ता की दास्तान सुनाते हैं। उदास शाम की यादों भरी सुलगती हवा इस वीरान स्टेशन पर तन्हाई की वाहिद साथी है, जो यहाँ कभी कभार आने वालों को अपनी बाहों में भर लेती है। कैमरामैन अली रजा के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। अच्छा जी, कुछ हुकूमती विरसों की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान का रुख करते हैं, जिसका इलाका है मेहरगढ़, जहाँ सदियों पुरानी तारीख आज भी मिट्टी के ज़रों, टूटे बर्तनों और जो खामोश खंडरात है ना नाजरीन, उसमें सांस लेती हुई समझे महसूस होती है। लेकिन बदकिस्मती से ये विरसा हुकूमती गफलत के बायस अवाम की नज़रों से आज भी ओझल है। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट देखते हैं इस पर। ये है बलूचिस्तान की तारीखी वादिये बोलान, पहाड़ों के दामन में बसी वो सरजमीन जिसने इंसानी तहजीब के इब्तदाई नकूश अपनी मिट्टी में महफूज कर रखे हैं। कोयटा से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर वाक़े मेहरगढ़ एक ऐसा तारीखी मकाम है जिसे जनूबी एशिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार किया जाता है। यहाँ आज भी 9000 साल कदीम तहजीब के आसार बिखरे दिखाई देते हैं। खामोश टीले, मट्टी के बर्तनों के टुकड़े, कदीम तामीरात के निशानात सब इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ एक तरक्की याफ्ता इंसानी बस्ती आबाद थी। मेहरगढ़ तो हमारी 9000 साल पुरानी साइट है और इस वक्त यूनेस्को के साथ इनलिस्ट भी हो रहा है। तो ये आप देख लें कि अब ग्लोबली प्रोटेक्टेड साइट हो जाएगा। जब आप यूनेस्को के साथ इसको रजिस्टर कराते हैं तो फिर ये आलमी वर्सा बन जाता है। ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है इसकी प्रोटेक्शन। फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा ने 1970 की दहाई में यहाँ खुदाई का आगाज किया। तहकीकात से मालूम हुआ कि हजारों बरस कबल मेहरगढ़ में बसने वाले लोग इज्तमाई और मुनज़्ज़म माशरती जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ खेती बाड़ी की जाती थी, मवेशी पाले जाते थे और बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत घर और बस्तियाँ तामीर की गयी थी। माहिरीन का कहना है उस दौर में इस इलाके में एक बड़ा शहर आबाद था जहाँ 20,000 से ज्यादा अफराद रहते थे। मेहरगढ़ के कंजर्वेशन के हवाले से हमने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करवाई है पूरी। इसके साथ साथ अब भी हमारी एक स्कीम भी हमने रिफ्लेक्ट करवाई है कि हम इस पे साइट म्यूज़ियम बनाएं, साइनेज इसके बनाएं और साथ साथ साइट को कंजर्व करें। चूँकि साइट ऑलरेडी डिमोलिश कम्प्लीटली हो चुकी है, तो हमारी इस वक्त प्लान ये है कि हम उसका रेप्लिका 3D बना के उसको म्यूज़ियम कर लें साइट पे, ताकि लोग आ जाएं, लोगों को पता चले कि मेहरगढ़ की साइट किस तरह की थी। तकरीबन 30 बरस तक जारी रहने वाली खुदाई के दौरान फ्रांसीसी टीमों ने यहाँ से इंसानी ढांचे, मुजस्मे, जेवरात, खिलौने, औजार, मिट्टी के बर्तन और रोजमर्रा इस्तेमाल की बेशुमार अशिया दरियाफ्त की। ये नवादरात इंसानी तारीख के एक अजीम बाब की नुमाइंदगी करते हैं। इनमें से कई तारीखी अशिया आज भी कोयटा, इस्लामाबाद समेत दीगर म्यूजियम में महफूज हैं। मेहरगढ़ जो है ने इंडस सिविलाइजेशन को जन्म दिया। कुछ नवादरात जो वापस लाए हैं वो मेहरगढ़ म्यूज़ियम में अवेलेबल हैं फ़िलहाल, और बहुत सारे जो नवादरात हैं वो अभी भी फेडरल डिपार्टमेंट के पास हैं, कराची में पड़े हुए हैं या फिर बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे म्यूज़ियम्स में बलूचिस्तान के नवादरात पड़े हुए हैं। कोशिश यही होगी ये नवादरात वापस लाए जाएँ।
माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि मेहरगढ़ सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कीमती तारीखी विरसा है, लेकिन मुनासिब तवज्जो न मिलने के बायस ये मकाम आज भी आलमी सतह पर वो अहमियत हासिल नहीं कर सका जिसका ये हकीकी मानों में हकदार है। माहिरीन का कहना है कि अगर इस तारीखी मकाम की मुनासिब देखभाल की जाए, सयाती सहूलियात फराम की जाए और आलमी सतह पर इसे उजागर किया जाए तो मेहरगढ़ न सिर्फ आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ की एक बड़ी मिसाल बन सकता है बल्कि बलूचिस्तान में सयाहत के फरोग का अहम जरिया भी साबित हो सकता है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ, कैमरामैन जफर बलोच और जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, सामा, कोयटा। अच्छा, जितना कुछ है मेहरगढ़ में, नूरुल आरफीन ने अपने रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि ये एक बाकायदा तौर पर कहते हैं ना टूरिस्ट हब के तौर पर भी साबित हो सकता है, लोग आ सकते हैं। देखिए बड़ा ज़रूरी है, जो भी तारीख़ को समझने का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, या मैं कहती हूँ कि नहीं भी रखते, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को बोरिंग भी लगता है, तो इस तरह के जो मकामात होते हैं ना, ये आपके अंदर की जो एक स्टडी है उससे दोबारा से जगाते हैं। आप अपनी सकाफ़त को जोड़ते हैं, अपनी रूट से उसको कनेक्ट करते हैं, वहाँ की ट्रेडिशंस को लर्न करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। नूरुल आरफीन कहते हैं ना कि अभी तक तो ये ओझल थी बहुत सारी नजरों से, लेकिन उन्होंने हमें पहुंचा दिया जी वहां तक। सो थैंक्स टू नूरुल आरफीन फॉर दिस सपोर्ट। डेफिनेटली वर्क भी होना चाहिए ताकि निखर कर सामने आए, जो खूबसूरती ढल चुकी है वो दोबारा से उभर कर सामने आए। तो फिल वक्त अपने नाजरीन को हम ये बता देते हैं कि स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों से तगड़ा मुकाबला करके तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। गली कूचों से लेकर आलमी मुकाबले तक के इस सफर की कहानी जान लेते हैं शहजाद अली से। पाकिस्तान की कच्ची आबादियों और तंग गलियों से आलमी सतह की कामयाबियों का सफर। मैक्सिको में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन लेकर टॉप गोल स्कोरर रहने वाले पाकिस्तानी शाहीनों ने दुनिया को हैरान कर दिया। मैक्सिको में इंग्लैंड के एक कोच आए थे, गोलकीपर कोच, तो मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हमने जो माशाल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है तो ये हम मरकई हक और पाक फौज को डेडिकेट करते हैं। मैंने दुनिया के बेहतरीन टीमों के साथ खेला है, जिसके इंग्लैंड और अर्जेंटीना और ब्राज़ील, इन टीमों के साथ खेलकर आपके बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपको गली मोहल्ले में नहीं मिलता। दूसरा मैच था उसमें मैं मैन ऑफ द मैच भी आया था और मुझे $100 इनाम भी मिला था, वो मेरा यादगार है। टीम की असिस्टेंट कोच इमामा आरिफ कहती हैं कि ये बच्चे ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मगर अफसोस कि आज भी इनके लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। जरूरत इस बात की है कि इन्हें सिर्फ खेल का मैदान नहीं, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल भी दिया जाए। ये बच्चे ग्रास रूट लेवल पे आते हैं, इन सब के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कि भी इंटरनेशनल खेल कर आए, इनको दोबारा से स्कूलों में इनरोल करवाना है और इनको मेक श्योर करना कि इनको एजुकेशन भी प्रॉपर प्रोवाइड कीजिए। पाकिस्तानी बच्चों की कारकर्दगी जज्बे, हौसले और पाकिस्तान से मोहब्बत की एक दास्तान है। महदूद वसाइल के साथ पाकिस्तान के इन बेटों ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करके साबित कर दिया कि असल टैलेंट अपना आप मनवा कर रहता है। ये जीत महज एक ट्रॉफी नहीं, लाखों बच्चों के लिए हिम्मत की एक नई मिसाल है।